Hi, good morning, students. Whenever I ask you, they reply. Otherwise, now you see me. What we are learning here: sense of judgment, sense of taking decisions, being very conscious. That small girl, the little girl, Valli. So many aspects or so many obstacles came on her way, though she just how she dealt like with them. That's what we are coming to know by reading the text gradually. Though it's a bit lengthy topic, this is taking much time. So the last, we are at the next para of this 1 to 3 page. But before that, let's see the information. This will bother a bit, even though we just need to continue because time is passing. Now you see, wait, 1 to 3 page number and go to the next para. Outside excursion, outside the ways, the last line we completed in the last para. कि भाई वो जब उसकी मदर स्लीप करती थी वो एक्सकर्शन करती थी किस तरह से उसका जो है प्लानिंग मैनेज करती है हाउ शी कैलकुलेट्स द थिंग्स उसके बाद जब वो बस में जा रही है उसका सिनेरियो हम लोगों ने देखा. Then what happens next? The bus rolled on now, cutting across a bare landscape. Now she's on the bus और she's viewing outside the scenario. अब outside scenario को view करते हुए वो बताती है कि किस तरह से बस जो है किस तरह के areas को cross करते हुए निकलती है. You can see in the picture also. Now rushing through a tiny hamlet or past an old wayside shop. Hamlet होता है small village. छोटे छोटे गांव होते हैं ज़्यादा बड़े नहीं होते. These are called hamlets. In the European countries, village वहाँ पर नहीं बोला जाता है. These are called hamlet. उनको hamlet बोलते हैं वो लोग जो छोटे गांव होते हैं. Past an old wayside shop और कुछ जो है ओट बड़ी विचित्र सी दिखने वाली वो वल्ली बताती है कि भाई जो शॉप्स थी. Sometimes the bus seemed to on the point of gobbling up. Gobbling means to take quick or sharp aheadness. Means वो तेजी से आगे बढ़ती है. It goes fast. Up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. Suppose if you must have seen the scenario. You every day come by bus or like by your vehicle. कि सामने से अगर कोई व्हीकल आ रहा है वहां से आ रहा होता है तो लगता है दैट्स गोइंग अ बिट स्लो बट व्हेन इट कम्स क्लोज और फिर हमें पास करके निकलता है देन इट सीम्स दैट्स टू क्विक. ऐसा लगता है कि बड़ी तेजी से हमारे पास से निकल जाता है. दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वल्ली. दैट्स व्हाई शी इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग व्हिच केम ऑन हर वे एंड शी फेल्ट दैट शुड बी एक्सप्लेन्ड और डिस्क्राइब्ड. और पेडेस्ट्रियन मीन्स लाइक द पीपल हु वर जस्ट गोइंग ऑन फुट. पैदल चल रहे थे पीपल. कुछ लोग जो पैदल चल रहे थे और कुछ जो है गाड़ियां आ रही थी जा रही थी जो क्रॉस कर रहे थे रोड को. बट लुक दिस इज एन एक्सप्रेशन बेसिकली while just talking or expressing something the one is using the expression of like excitement, right? कि किस तरह से वो शो करती है. somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind. See now, somehow it passed on smoothly. Relaxed निकल जाते हैं. Leaving all obstacles safely behind. See, this was the first expression, like experience. वल्ली के लिए ये थोड़ी obstacles दिखाई दी, बाधाएं थी. But when the driver was driving,
The one was very experienced, उसके लिए तो ये कॉमन था सब कुछ, बट फॉर वल्ली इट वाज ऑब्स्टेकल्स, कि भाई ये बाधाएं थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो स्मूथली जो है पास हो गई और वो आगे बढ़ गए आगे. This is her experience basically. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. होता है ऐसा practically when the train or bus or car whatever it is going on, तो ऐसा लगता है कि जो वो trees है दौड़ के हमारी तरफ आ रहे हैं, but होता रहा कुछ उल्टा हो रहा होता है, something different happens there. ये सिर्फ सीम होता है, इट सीम्स लाइक, ऐसा प्रतीत होता है एक्चुअल में कुछ हो रहा है. एक्सपीरियंस सबको है, बट शी इज ऑफ 8 years old, वो 8 साल की है, फर्स्ट टाइम जर्नी कर रही है बस में, तो उसको ऐसा लगता है कि जो वृक्ष हैं, जो ट्रीज हैं, वो दौड़ करके आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस पहुंचती है वो रुक जाते हैं, स्टिल वहीं पर बिल्कुल शांत खड़े हो जाते हैं. राइट, ये उसका वे ऑफ थिंकिंग है, हाउ शी थिंक्स ऑफ दिस बेसिकली. सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. Glee is an expression of being happy, बहुत ही ज्यादा खुश होना. When someone seems to be too much glad, उसको glee हम लोग बोलते हैं. अब वो तालियां बजाने लगती है. A young cow, tail high in the air, was running very fast. Now we can see on the screen also in the picture कि भाई ये काव जो है उसकी टेल जो ऊपर उठी हुई है और वो जो भाग रही है, running very fast right in the middle of the road, बिल्कुल उस रोड के बीचों बीच जिस पर जो है वल्ली की बस आ रही है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और बिल्कुल अब वो बस के सामने होती है. द बस स्लोड टू अ क्रॉल, और बस जो है उसको रनिंग करके उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगती है. सी काउ वाज रनिंग वेरी फास्ट, बट जो बस थी उसका तो जो है चलना बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो रेंग रही है. क्रॉल वर्ड इज यूज्ड हियर बिकॉज दैट वाज अ स्लो, एंड द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. बार बार जो है ना ड्राइवर जोर से हॉर्न बजाता रहा ताकि वो जो है एक साइड हो जाए. लेकिन कई बार होता क्या है कि जो कैटल है या फिर जो एनिमल है वो जो है क्या करते हैं, भागे रहते हैं स्ट्रेट जब तक कि वो गैस्पिंग शुरू नहीं करते, टिल दे जस्ट फील लाइक गैस्पिंग मीन्स हाफना, सांस चढ़ जाना, फिर वो करते हैं वे साइड हो जाते हैं, देन द व्हीकल्स पास. बट द मोर ही हॉन्क्ड, वो कहता है जितना ज्यादा वो हॉन्क्ड करता, हॉर्न बजाता जोर से, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम, और उतना ही ज्यादा जो एनिमल था डर जाता, फ्राइटेंड हो जाता और तेजी से जोर लगा करके भागना आगे की तरफ. एंड द फास्टर इट ग्लैप्स्ड मींस वेरी फास्ट रनिंग, बड़ी तेजी से दौड़ने लगता, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा जो है जैसे ड्राइवर हॉर्न बजाता वो जो है काऊ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती, दौड़ने लगती बस के आगे आगे बिल्कुल एकदम से. Somehow this was very funny to वल्ली, और किसी तरह से कहते हैं बताती है कि भाई वल्ली के लिए जो है बड़ा फनी था ये. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. होता है ना ऐसा कि कई बार हम लोग इतना हंसते हैं that we don't get to control our emotions, और खुशी के आंसू जो है निकल आते हैं. राइट, सो इतनी हंसी वो कि उसकी आंखों से आंसू तक निकलने लगे. Hi lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. Now there is somebody on the bus basically who interferes, and that's the most the jolly person, that's the conductor. अब वो conductor उसको कहता है कि hey lady, the another word announced to talk to the little girl. Earlier it was madam, now it is lady. Now the word the conductor is using to just have a communication with the girl. Haven't you laughed enough? कितना नहीं हंस चुके आप, बहुत ही ज्यादा, कंडक्टर ने बोला, और कहता है कि कुछ कल के लिए भी बचा करके रखो, कल भी तो हंसना है, ऐसा थोड़ा ही कि आज हंस के सारा खत्म कर देना है. उसको थोड़ा ही पता है, वल्ली को पता है कि कल तो आगे पता नहीं आना है कि नहीं आना, तभी वो हंसी जा रही है बेचारी, ठीक है ना. लेकिन कंडक्टर को थोड़ा ही पता है. हाँ भाई. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और आखिरकार क्या होता है कि जो काउ थी वो मूव ऑन कर जाती है, वन वे आउटसाइड हो जाती है. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और जल्दी जो है बस आ जाती है रेल रोड क्रॉसिंग के पास.
The tracks are closed. A speck of a train could be seen in the distance. A speck means when you see from the distance something that seems to be very small, but when it comes to closer, it becomes bigger, bigger. अब वो उसमें बताता है, देखो. अब स्पेक ऑफ ट्रेन मीन्स बिल्कुल स्मॉल, छोटा सा स्पॉट की तरह वो दिखाई दे रही है. स्पेक ऑफ ट्रेन इस तरह से डिस्टेंस में ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर. जैसे ही वो नजदीक आती गई वो बड़ी होती चली गई. Right, this was the first experience of Valli when she saw the train basically. कैसे वो दिखती है when it starts and when it comes close, how it becomes big, वो सारा बता रही है. Then it rushed past crossing the gate with a tremendous roar and rattle. Roar means the hard जो उसका sound होता है जब क्रॉसिंग नजदीक से गुजरती है और जो नजदीकी व्हीकल होता है वो महसूस करता है और पीपल उसमें जो है. एंड रेटल मीन्स जब ट्रेन गुजरती है मस्ट हैव सीन द वाइब्रेशंस, दैट्स कॉल्ड रेटल. राइट, रेटलिंग मीन्स होता है वाइब्रेशन जो वो फील करते हैं वहां पर सारे के सारे. अब वो कहता है इस तरह का होता है. एंड शेकिंग द बस, और बस जो है हिल जाती है. Then the bus went on and passed the train station. और बस जो है फिर आगे बढ़ती है, उस ट्रेन स्टेशन को आगे पास करके आगे निकलते हैं. From there it traveled a busy, well laid out shopping street. Now you see, now that it seems basically not given in the explanation that the bus has come in the city. टाउन के अंदर आ चुकी है और टाउन में वो कहते हैं बताती है कि ट्रेवल्ड बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट. इस तरह की स्ट्रीट में है दैट्स फुल ऑफ पीपल, बिजी है बिल्कुल एकदम से, और वहां से गुजर रही है. शॉपिंग स्ट्रीट है वो. एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर. वाइडर थॉरोफेयर मींस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि बड़े बड़े वो बना रहता है, कवर बोलते हैं उसको, इस तरह से उसके नीचे से वो निकल के जा रही है. दैट्स कॉल्ड थॉरोफेयर. एक दरवाजा टाइप बोल सकते हो आप, हालांकि दरवाजा नहीं होता, उसमें एंट्री वालों का वेलकम होता है लिखा हुआ और एग्जिट वालों का थैंक्स होता है लिखा हुआ. राइट, कुछ ऐसे होते हैं. दीज आर कॉल्ड थॉरोफेयर्स बेसिकली. वो हर विलेज में भी मिलते हैं, सिटी में भी मिलते हैं. सो इस तरह से उसको वो क्रॉस करके आगे बढ़ती है बस. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, एक्सक्लेमेशंस, एक्सप्रेस करती है वो अपने आप को, बड़ी चकित होती है कि भाई कितनी साफ सुथरी, ब्राइट लुकिंग, चकाचौंध कर देने वाली शॉप्स हैं यहाँ पर. What glittering displays of clothes and other merchandise. Glittering, चमकने वाले. You must have seen the displays out there, the shops. Or when somebody is looking at them at the first time, उसके लिए तो expression और experience पूरा different रहता है. उस point of view से वल्ली बात कर रही है कि भी कितने चमकीले और कितने अच्छे जो हैं कपड़े हैं. and other merchandise. Merchandise means goods, चीजें जो होती हैं हम लोग यूज करते हैं, वो डिस्प्ले पे लगी हुई है. कितनी अच्छी है. सच बिग क्राउड्स, और कितनी भीड़ है. The exclamation mark का meaning you need to understand everyone. The one is just expressing in a very different way, being surprised or amazed. Right? Exclamation means. So she was so surprised to see the shops, crowd, displays. कितने पहलू हमें देखो भाई उस बच्ची के देखने को मिल रहे हैं कि भाई किस तरह की लाइफ वो पहले जी रही थी, और आज आफ्टर गेटिंग ऑन द बस अब उसकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए हैं. सो मेनी सर्टेन चेंजेस टुक प्लेस इन हर लाइफ, और वो उसको जो है ब्रीफली एक्सप्लेन करते जा रही है. दैट्स व्हाट दिस इज टेकिंग टाइम. Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Struck dumb with wonder means when someone is completely unaware or unfamiliar about anything, so the one will do what? Will stand and stare at something. So वो इतनी हैरान थी, चकित थी कि वो बिल्कुल डम की तरह. That dumb means for the particular thing, और उसको वहां पर खड़े होकर के, gape means there to stare at something. वल्ली gaped at everything. जो भी उसको दिखता उसको वो घूरने लग जाती, स्टेयर करने लगती और आराम से उनको देखती है बड़ी हैरान परेशान से होकर, because this was the first time for her. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. और होता क्या है, वल्ली दुकानों की तरफ देखती है, चीजों की तरफ देखती है, और बस जो है बस स्टैंड पर पहुंच करके रुक जाती है. एंड द पीपल वर, वो सारे के सारे गेट ऑफ, नीचे आ जाते हैं, डिबोर्ड हो जाते हैं, एक्सेप्ट वल्ली, वल्ली को छोड़ करके. वल्ली डिबोर्ड नहीं होती है, गेट ऑफ नहीं होती है वल्ली. Hey lady,
said the conductor. Now the same again pronouncing lady. Conductor पूछता है उससे, कहता है उसको, aren't you ready to get off? क्या आप तैयार नहीं हो नीचे उतरने के लिए? This is as far as your 30 पैसा take you. और आपके जो 30 पैसे आपने दिए थे वो आपको यहीं तक पहुंचा सकते हैं, इससे आगे नहीं. That means the one is talking in a jolly way. जॉकिंगली वे में बात करता है वो कंडक्टर वल्ली के साथ. नो, वल्ली से, और वल्ली जो है मना कर देती है. आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, और कहती है कि भाई मैं सेम बस में वापस जा रही हूँ. शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर. अपनी पॉकेट से वो 30 पैसे निकालती है और कंडक्टर को जो है दे देती है. दिस वाज द फेयर टू गो बैक टू द विलेज. Why it's something? Why it's something the matter? क्या कोई बात है? That conductor became a bit worried to think about that the girl is not getting off the bus or just giving money. They might be afraid of going out. So he asked some questions. अब कहता है क्या कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है? It's something the matter? No, nothing's the matter. कोई बात नहीं है. वल्ली कहती है, I just felt like having a bus ride, that's all. मुझे लगा कि मुझे सिर्फ बस राइड करनी है, मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे और कुछ नहीं करना है. यही था बस, मुझे बस राइड करनी थी और मुझे कुछ नहीं करना था. Don't speak. That's all. Don't you want to have a look at the sights? Sights means there are so many places in the city, in the town. So कंडक्टर पूछता है क्या आप अच्छी जगहों को नहीं देखना चाहोगी, साइट्स नहीं करना चाहोगी, देखना नहीं करना चाहोगी. नाउ दैट यू आर हियर, और जबकि आप जो है टाउन में आ चुकी हो. शी वाज अवे 8 years. सो ऑल बाय माई सेल्फ. ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड. वो कहती है कि भाई नाउ शी डिसाइडेड व्हाटएवर. Now the things are coming on her way. The conductor is talking to her. Unnecessary questions are there basically. She tries to evade him. Evade means होता है उसको अपने पास से टाल देना, कि भाई वो वहां से चला जाए. इस तरह से वो उसको ये शो करती है कि भाई मुझे थोड़ा डर है, मैं नहीं जाना चाहती, मैं डायरेक्टली जो है घर जाना चाहती हूँ यहाँ से. सिनेरियो को वो चेंज करने की कोशिश करती है, इवेड करने की कोशिश करते हैं. टू गेट रीड भी हम लोग इसको बोलते हैं. Greatly amused by the girl's way of speaking. और जिस तरह से गर्ल बात कर रही थी, वल्ली बात कर रही थी, तो बड़ा एंजॉय कर रहा था. The conductor was amusing. उसे बात करते हुए the conductor said, but you weren't afraid to come in the bus. लेकिन आप जो है जब बस में आई उस समय तो आप नहीं डर रही थी, तो अब क्यों डर रही हो? You were just amusing. You were just passing time with the girl, a bit entertaining, nothing else. Nothing to be afraid about that, she answered. और वो क्वेश्चन करती है उसको कि इसके बारे में क्या डरना, बस में आने के बारे में क्या डरना, इसके बारे में. Well then, why not go to that stall over there and then have to drink? Nothing to be afraid of about that either. Now what he talks about, the conductor is talks about that कि भाई चलो ठीक है, अगर तुम्हें बस में आने से डर नहीं लगता है तो चलो ठीक है, वो एक स्टॉल दिखाई दे रहा है, उस स्टॉल पर चलते हैं और वहां पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं. उसके बारे में भी क्या करना. Then go to that stall over there, दिखाता है उसको, इंडिकेट करता है, have something to drink, चलो कुछ पीते हैं. Nothing to be afraid of about that either, और उसके बारे में भी डरने की कोई बात नहीं है. Either means used. Oh no, I couldn't do that. वल्ली कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती वहां पर, मैं नहीं जा सकती, मना कर देती है वल्ली वहां जाने से. Well then, let me bring you a cold drink. कंडक्टर उसको बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे आपके लिए जो है एक कोल्ड ड्रिंक लेके आने दो. नो, आई डोंट हैव इनफ मनी. मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है. जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. बल्ली सी द वे ऑफ डीलिंग विद द अननोन वन, विद वेरी सिंसियर टॉक, हैविंग पेशेंस एंड कॉन्शियसनेस. और उसको मना कर देती है, कहती है कि भाई आप जो है ना मुझे सिर्फ मेरी टिकट दे दो. इट बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. और ये जो है कंडक्टर कहता है कि मेरी तरफ से आपको ट्रीट होगी, दैट हैव कम टू द सिटी और टाउन टू जस्ट हैव अ विजिट.
और ये मेरी तरफ से ट्रीट है और आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है. You don't have to pay anything for this. No, no. She said firmly, please no. Firmly means the one is talking in a very pleasing way to just convince the one that कि वो जो कुछ बोल रहा है कि वो उसको agree करे. The conductor shrugged. Shrugged means you must have people seen children कि बच्चे जो है कंधे उकसाते हैं इस तरह से, ऐसे करते हैं ना, when they don't accept something, so that is called shrugged. अब वो कंडक्टर जो है अपने कंधे उचकाता है मनाई के वे में, मना करते हुए कहीं नहीं मैं लेके आऊंगा. एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. और अब वो कहता है कि इसी समय, इसी दौरान जो है बस के वापस जाने का समय हो जाता है. बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन देयर वांट मैनी पैसेंजर्स. एंड इट हैपन्स बेसिकली कि अगर टाइम सही नहीं हो तो जो व्हेन द बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्निंग पॉइंट, वहां से भी पैसेंजर्स जो है काफी कम होते हैं. पैसेंजर्स आर वेरी लेस इन नंबर. I think that's not possible that we can complete today. Is it possible?